الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں کا درس کا عنوان دین اور اس کے اہم اصول ہیں۔ اسی کے متعلق پچھلے ہفتے کچھ اہم اصول پر گفتگو کی گئی تھی۔ انشاءاللہ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کچھ اور اہم اصول پر گفتگو کی جائے گی۔ پہلے مختصر میں ہم لوگ ان باتوں پر غور کرتے ہیں جو پچھلے ہفتہ ہم لوگوں نے ڈسکشن کیا تھا۔ تو پچھلے ہفتہ ہم لوگوں نے ڈسکشن کیا کہ ہدایت ملنے کا کیا اصول ہے، ہدایت کس کو ملے گا۔ اس کے متعلق 5 اہم اصول بیان کیا گیا تھا کہ اس بات کا عقیدہ ہو کہ ہدایت دینے کا اختیار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ اس پر پختہ کا ایمان ہونا چاہیے۔ دوسرا اصول ہے کہ ہدایت اسی کو ملے گا جو ہدایت کا طلبگار ہو، یعنی ہدایت کے لیے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا تب اس کو ہدایت ملے گا۔ تیسری بات کہ ہدایت اس کو ملے گا جو اللہ پر ایمان لائے گا، جو اللہ پر ایمان لائے گا اس کو ہدایت ملے گا۔ چوتھی بات کہ ہدایت اس کو ملے گی جو اللہ پر اس طرح ایمان لائے گا جس طریقہ سے صحابہ ایمان لائے گا۔ اور 5واں اصول کہ ہدایت اسے ملے گا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے گا۔ تو یہ 5 اہم اصول ہیں، اگر آپ اس کے موافق ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ہدایت ملے گا۔ دوسری اصول ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اگر کسی کی بھی آپ اتباع کریں گے تو آپ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے، یا بغیر دلیل کا اگر آپ عمل کر رہے ہیں تو آپ گمراہی کی طرف۔ ان باتوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کی گئی تھی۔ اور آخری اصول جو پچھلے ہفتہ ڈسکشن کرنا شروع ہوا تھا، جس کے بیچ میں ہی وقت ختم ہونے کی وجہ سے روک دیا گیا تھا، اسی اصول کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ اختلاف کے وقت آپ فیصلہ کس طرح کریں۔ اگر کسی مسئلے میں یا کسی دین کے چیزوں میں اگر کسی طرح کا اختلاف ہو جائے تو ہر طرح کے اختلاف کو حل کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کے اندر میں کیا اصول بیان کیا گیا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ تو پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے ایک قرآن کا ایک آیت پر غور کیے تھے کہ سورہ نساء کا آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں اولو الامر ہیں۔ اگر کسی بات میں اختلاف ہو جائے
تو اس کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہی بہترین طریقہ ہے فیصلہ کرنے کے لیے۔ یہ آیت کا ڈسکشن کیا گیا تھا، تو اس میں کچھ اہم بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے، اور ان کا بھی اطاعت کرنا ہے جو آپ میں اولو الامر ہیں۔ اولو الامر کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حاکم ہے اور اس سے مراد عالم بھی ہے، علماء بھی ہے، تو ان کی بھی اتباع کی جائے گی، مگر ان کا اتباع تب تک کیا جائے گا جب تک یہ اللہ اور رسول کے حساب سے بیان کرے، یعنی ان کی پیروی تب تک کی جائے گی جب اللہ اور رسول کے حساب سے یہ بیان کرے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جب دنیا میں اللہ اور رسول کو چھوڑ کر کسی کو بھی اتباع کریں گے تو اختلاف کا امکان ہے، تو اس میں اسی بات کا وضاحت کیا گیا کہ اگر اختلاف ہو جائے تو لوٹانا ہے اللہ کے طرف اور رسول کی طرف۔ تو اختلاف کے وقت ہمیشہ لوٹانا جو ہے وہ اللہ ہی اور رسول کی طرف ہے، تیسرا کہیں نہیں لوٹا سکتے ہیں، یعنی فیصلہ کبھی بھی ہوگا تو کہاں سے ہوگا؟ اللہ اور رسول سے۔ آج دنیا کے اندر میں بہت سارا فرقہ ہے، گروہ ہے، اختلاف ہے، اور یہ سارا اختلاف کا حل اگر آپ چاہتے ہیں تو کہاں حل ملے گا؟ تو اللہ اور رسول کی طرف ہی حل ملے گا، یعنی سب کو لوٹنا پڑے گا اللہ کی طرف، رسول کی طرف، تبھی فیصلہ پوسیبل ہے۔ کسی شخصیت پر سب لوگ جمع نہیں ہو سکتے، اس میں یہ وضاحت کیا گیا ہے۔ اور اس میں شرط بھی لگایا گیا ہے کہ اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ ایمان میں سب سے اہم جو چیز ہے جس میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے وہ اللہ کے توحید پر اختلاف کیا ہے اور قیامت کے دن پہ اختلاف ہوا ہے، قیامت کے دن ہوگا کہ نہیں ہوگا، فیصلہ ہوگا کہ نہیں، سب تو دنیا میں ہوتا ہے، اس میں بہت سارے لوگوں نے اختلاف کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دونوں نقطوں کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا کہ اگر آپ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ اسی طرح سے فیصلہ کریں گے، یعنی اگر کوئی بھی اختلاف میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر اس کا ایمان جو ہے وہ ادھورا ہے، وہ پورا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شرط لگا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہا ہے کہ یہی بہترین طریقہ ہے فیصلہ کرنے کا۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ فیصلہ آپ کریں گے کیسے؟ تو اس میں وجاہت یہ بھی کی گئی تھی کہ اگر مان لیجئے آپ یا کوئی بھی آدمی کے پاس قرآن حدیث کا علم ہے، تو کسی دو بات کہیں سے آئے تو وہ قرآن حدیث کے روشنی میں اس کو چیک کر لے اور چیک کر کے فیصلہ کر لے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط۔ اگر علم نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ رجوع کریں گے ان کے طرف جو علم والے ہیں، اور ان سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اپنا رائے بتائیے، آپ یہ کہیں گے کہ قرآن کے طرف اور رسول کے طرف، یعنی قرآن کے طرف اور حدیث کے طرف لوٹا کر اس مسئلے کا حل بتائیے کہ کیا حق ہے، اور پھر اس پر عمل کریں گے۔ تو ایک علم والوں کو بھی عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جو علم والے نہیں ہیں ان کے لیے بھی عمل کا آسان ہو جاتا ہے، مگر ہمیشہ آپ کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ فیصلہ کہاں سے چاہیے؟ اللہ اور رسول کو۔ اب جیسے اگزامپل کے طور پر ایک عالم کہتے ہیں کہ وضو میں کہ کوئی آدمی اگر پیر سے وضو کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے، یا جدھر سے من کرے ادھر سے وضو کر لے تو بھی ہو جائے گا، اس میں کوئی ترتیب کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اسکالر اس طرح سے وضاحت کرتا ہے، ایک اسکالر اس طرح کہتا ہے کہ نہیں، ترتیب ایک دم ضروری ہے، اگر بغیر ترتیب کا کوئی وضو کرے گا تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ آپ کو وضو اسی طرح کرنا ہے جس طریقہ سے حدیث کے اندر میں، قرآن کے اندر میں وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ اب آپ کے پاس مسئلہ آ جاتا ہے کہ بھائی کرے تو کیا کرے، کون صحیح ہے؟ تو آپ لوٹائیے قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف۔ تو جب آپ قرآن حدیث میں غور کریں گے تو ہمیشہ وضو کا شروعات اسی طرح سے ہے
कि आप हाथ से करेंगे, कुल्ली करेंगे, नाक में करके इस तरह करके फाइनल करेंगे, कभी भी पैर से वजू का आपको कहीं पर दलील नहीं मिलेगा। तो इससे आपके पास वजाहत क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या दुरुस्त है, क्या दुरुस्त नहीं। उसी तरीका से एक स्कॉलर कहते हैं कि अगर औरत को टच कर दे आप, मर्द आदमी से औरत अगर टच हो जाए तो वजू टूट जाता है। एक स्कॉलर कहते हैं कि ना, नहीं टूटता। अब बैक वक्त तो दोनों ठीक नहीं हो सकता है, चाहे तो वजू टूट जाएगा चाहे तो नहीं टूटेगा। अब आपके पास मसला हल है, कैसे करेंगे भाई? तो हदीस की तरफ हम लोग जाएंगे। तो बुखारी शरीफ के अंदर में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद के अंदर में नमाज पढ़ते तो आयशा रिवायत करती कि हम उनके सामने ऐसे ही सोई रहती जिस तरीका से जनाजा रखा रहता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सिजदा करने के लिए आते तो पैर पर अपने हाथों से क्या करते, मारते, हम पैर खींच लेती हूँ, फिर वो सिजदा कर लेते, और फिर सिजदा से वो जब उड़ जाते तो मैं पैर फैला लेती थी। तो बिस्तर पर ही नमाज पढ़ रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इनसे इस हदीस से वाजब मालूम हो रहा है कि वो औरत को टच करने से वजू नहीं टूटेगा, तो ये मसला हल हो जाता है। उसी तरीका से एक स्कॉलर कहते हैं कि भाई जेवर जो है, जेवरात जो है, उस पर ज़कात नहीं है। एक स्कॉलर कहते हैं कि जेवर पर भी ज़कात है। समझ रहे हैं? तो अब इसका क्या है भाई? दोनों स्कॉलर है, बैक वक्त दोनों ठीक नहीं हो सकता है। तो आप हदीस की तरफ जब रुजू करते हैं तो आपको पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आती है और उसकी बच्ची जेवर पहनी हुई रहती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं क्या तुम इसका जेवर का ज़कात देती हो? तो वो बोलती है या रसूल अल्लाह नहीं देती हूँ। तो ये इसका ज़कात दो, नहीं तो ये क़यामत के दिन ये जेवर सांप का शक्ल अख्तियार करेगा। तो इससे क्या मालूम चला कि पहना हुआ जेवर पर भी ज़कात है। तो इस तरह का बेशुमार मिसालें हैं, ठीक है ना, जिससे आप कुरान और हदीस की तरफ रुजू करके मसले को हल कर सकते हैं, देख सकते हैं। उम्मत में लोग अपने अपने रविश में मुब्तला हैं और इन बातों पर गौर नहीं करते। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरी आयत की तरफ। एक आयत है सूरह निसा का ही, यही आयत है 105 नंबर आयत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि बेशक हमने आपके तरफ ये किताब हक के साथ नाजिल की ताकि आपको अल्लाह ने जो सीधी राह दिखाई है उसके मुताबिक लोगों के दरमियान फैसला करें और आप खयानत करने वालों के हिमायती न बने। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ इस आयत के अंदर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वजाहत कर रहा है कि आपको फैसला किससे करना है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो नाजिल किया है उसके हिसाब से करना है। जो नाजिल किया है उसके हिसाब से ही फैसला करना है। और हम लोगों ने पिछले दर्स के अंदर में डिस्कस किया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या नाजिल किया है, तो वही नाजिल किया है। और वही कहां पर महफूज है? तो कुरान हदीस में महफूज है, यानी कुरान हदीस के हिसाब से ही फैसला किया जाएगा। इस आयत में भी वजाहत किया जा रहा है। और इसका तफसीर में देखिए, बुखारी शरीफ के एक हदीस है 2695 में इसका वजाहत मौजूद है कि उस जमाने में भी जो लोग होते थे, अगर उनको फैसला कराना होता था तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस फैसला में क्या डिमांड करते थे। इस आयत के, इस हदीस के अंदर में इस बात का वजाहत है। देखिए, अभी से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ज़ैद बिन खालिद ज़हमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि एक देहाती आया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारे दरमियान किताबुल्लाह से फैसला कर दीजिए। अब देखिए, वो देहाती आ रहा है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कह रहा है कि हमारे दरमियान आप फैसला कीजिए, किससे? किताबुल्लाह से, यानी अल्लाह के वही से फैसला कीजिए, यानी अल्लाह ने जो नाजिल आप पर किया है उसके हिसाब से फैसला कीजिए। ठीक है जी। दूसरे फरीक ने भी यही कहा कि उसने सच कहा, आप हमारा फैसला किताबुल्लाह के मुताबिक करिए। अब दोनों फरीक झगड़ा किए हुए हैं, किसी मसले में उनके पास प्रॉब्लम है, इख्तलाफ है, तो वो दोनों फरीक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके क्या कह रहे हैं कि हमारा फैसला कीजिए। और फैसला किससे करना है? किताबुल्लाह से करना। देहाती ने कहा कि मेरा लड़का इसके यहां मजदूर था, फिर उसने इसके बीवी से जना किया। कौम ने कहा कि तुम्हारे लड़के को रजम किया जाएगा,
लेकिन मैंने अपने लड़के के उस जुर्म के बदले में 100 बकरियां और एक बांदी दे दिया। ये कहता है कि ये लड़का जो है हमारे घर पर मजदूर था और हमारी बीवी से जना किया, और जना के बाद इसके एवज में कौम वालों ने कहा कि आप 100 बकरियां और एक बांदी दे दीजिए, तो आपका रजम जो है, सजाए मौत जो है आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर मैंने इल्म वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उसके सिवाय कोई सूरत नहीं कि तुम्हारे लड़के को 100 कोड़े लगाए जाए और 1 साल के लिए मुल्क बदर कर दिया जाए। अब इन लोगों के पास इख्तलाफ हो गया कि कौम में जो लोग थे जहां वो रहते थे वो कह रहे हैं कि 100 बकरी और 1 बांदी से तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, और इल्म वालों से जाके पूछा गया तो इल्म वाला क्या कह रहे हैं कि तुमको उसको 100 कोड़ा लगेगा और मुल्क बदर किया जाएगा। ये बकरी उकरी से काम नहीं चलेगा, ये मुआवजा से काम नहीं चलेगा। अब 2 बातें उन लोगों के पास आ गया। तो उस जमाने के अंदर में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो लोग जाता है और कहता है कि भाई हमको फैसला कीजिए किताबुल्लाह से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं तुम्हारा फैसला किताबुल्लाह ही से करूंगा। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजाहत कर रहे हैं कि हम फैसला करने जा रहे हैं किससे, किताबुल्लाह से। बांदी और बकरियां तो तुम्हें को वापस लौटा दी जाएगी, यानी जो बांदी और बकरी तुम जिए हो मुआवजे के तौर में वो तुमको लौटा दिया जाएगा। अलबत्ता तुम्हारे लड़के को 100 कोड़े लगाए जाएंगे और 1 साल के लिए मुल्क बदर किया जाएगा। जो इल्म वाले ने भी यही बात बोला था कुरान और हदीस की रोशनी में, ठीक है ना। और अनीस तुम उस औरत के घर जाओ और उसे रजम कर दो। चुनांचे अनीस घर गए और उसे रजम कर दिया गया। तो ठीक है, तो इसके अंदर में मसला का हल हो गया। और तो उस जमाने के अंदर में जो लोग थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर अगर किसी बात में उनपे इख्तलाफ नजर आता था तो इसी तरह से फैसला कराते थे। उसके बाद एक और आयत है सूरह अनाम का आयत नंबर 57, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, आप कह दीजिए कि मेरे पास तो एक दलील है मेरे रब के तरफ से और तुमने उसे झुटला दिया है। जिस चीज के जल्दी आने का तुम मुतालबा कर रहे हो वो मेरे पास नहीं। हुक्म अल्लाह के सिवा किसी का नहीं चलता, वो हक बात बयान करता है और वही सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत के अंदर में वजाहत फरमा रहा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुखातिब करके कि हमारे पास एक दलील है। क्या है दलील? वो दलील वही है। वो दलील क्या है? वही है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाजिल किया है, और वो वही कुरान और सुन्नत के तौर पर आज भी हिफाजत है और हमारे पास मौजूद है। और वो लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा करते थे कि आप हक पर हैं और आप सही हैं, तो हम लोगों पर अजाब लेकर आइए, अजाब नाफिज कर दीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें वजाहत किया जा रहा है कि आप फरमा दीजिए कि ये हमारे अख्तियार में नहीं है। किसके अख्तियार में है? तो ये अल्लाह के अख्तियार में है, और हुक्म सिर्फ अल्लाह ही का चलता है, अल्लाह के अलावा किसी का हुक्म नहीं, और फैसला भी अल्लाह ही की तरफ से है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू करके किसी मसले को फैसला और हल करने का तरीका बयान किया। एक जगह और वजाहत किया जा रहा है कि जो पहले के लोग थे जैसे यहूद और नसारा जो थे, तो उन लोगों में भी यही तरतीब था कि अगर किसी भी कहने का मतलब मसले में प्रॉब्लम है या किसी बात को आपको बयान करना है तो आपको कुरान उस जमाने के अंदर में जो किताब है जो वही है उसी के मुताबिक आपको फैसला करना है और उसी की तरफ से रुजू करना है। इसका वजाहत है इसमें इस आयत के अंदर में, बेशक हमने तौरात नाजिल की, इसमें हिदायत और रोशनी है। अंबिया जो अल्लाह की अताअत करने वाले थे इसी के मुताबिक यहूदियों के अंदर में फैसला करते थे।
تو अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें वजाहत कर रहा है कि पहले जो लोग भी थे तो तौरात के अंदर में के हिसाब से ही फैसला करते थे और अल्लाह वाले और उलमा फैसला करते थे। तो उस जमाने के अंदर में जो अल्लाह वाले थे और उलमा थे, वो लोग भी किधर रुजू करते थे फैसला करने के लिए? तो वो लोग भी अल्लाह की उतारी हुई किताब की तरफ रुजू करते थे और उसी के हिसाब से फैसला करते हैं। इसके लिए वो अल्लाह की किताब के नगरा बनाए गए थे और उस पर वो गवाह थे। अब यहाँ पर देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक और भी वजाहत किया कि पहले का जो किताबें थी वो रसूल और जो स्कॉलर थे, जो नेक और परहेजगार थे, उन लोगों की जिम्मा थी कि वो हिफाजत करेंगे। मगर वक्त गुजरते गुजरते नबी दुनिया से चले गए और वालिम भी चले गए। अब वो किताब भी बदल गया। मगर हमारा कुरान और सुन्नत ये अल्लाह के तरफ से है और इसका हिफाजत का जिम्मा भी अल्लाह के पास है। तो ये तो हमेशा हिफाजत रहेगा और इसीलिए हमेशा क़यामत तक आपको अगर फैसला करना है, किसी भी मसले के अंदर में इख्तलाफ हो, तो किताब और सुन्नत की तरफ लौटाकर, कुरान और हदीस की तरफ लौटाकर आपको फैसला करना है, इसलिए कि वो हिफाजत और करेक्ट फॉर्म में मौजूद है। फिर उसके बाद से इसमें बयान किया जा रहा है कि चुनांचे तुम लोगों से न डरो, मुझसे डरो और मेरी आयतें थोड़ी कीमत पर न बेचो, और जो लोग अल्लाह की नाजिल किए हुए के मुताबिक फैसला न करे वही काफिर है। इस आयत के सिलसिले में इमाम बुखारी ने हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से एक कौल नकल किया है। उस कौल में वजाहत उन्होंने किया है कि हुक्काम जो है, जो फैसला सुनाने वाले लोग होते हैं, उनके लिए 3 उसूल है। 3 उसूल के मुताबिक वो किसी चीज में फैसला करें। पहला उसूल है कि अपने ख्वाहिश की पैरवी न करें, यानी कहीं पर भी आपको किसी भी मसले के अंदर में या किसी भी सिचुएशन में अगर आपको फैसला करना है, आप हाकिम हैं और फैसला करने वाले हैं, तो कभी भी आपको क्या करना है? पहला उसूल है कि आप अपने ख्वाहिश के मुताबिक फैसला नहीं करें। तो किसके मुताबिक फैसला करना है आपको? तो वही के मुताबिक करना है, यानी कुरान और हदीस के मुताबिक आपको फैसला करना है। अपने मसले को कुरान हदीस की तरफ रुजू करना है, पहला उसूल, ख्वाहिश के मुताबिक। दूसरा, सही फैसला सुनाने के वक्त आपको लोगों से नहीं डरना है। दुनिया के लोगों से आपको डरना नहीं है फैसला सुनाने में, कि अगर हम सही फैसला सुनाएंगे तो हमारा लोग ये करेगा वो करेगा। तो आपको दुनिया के लोगों से नहीं डरना है, अल्लाह ही से डरना है। तीसरा उसूल इसमें बताया गया है कि रिश्वत लेकर गलत फैसला नहीं करना है। ये नहीं कि आप पैसा ले ले और गलत फैसला सुना दें। इसलिए कि यहूदी लोग यही करते थे कि कम कीमतों पर अल्लाह के कलाम को बेच देते थे, गलत चीजों को बयान करते थे कि वो हमारे तौरात में यही है, ठीक है ना। इस चीजों को इसमें वजाहत किया गया है। तो इसमें 3 उसूल आपको हम सिखाया गया है कि आपको फैसला करना है तो कुरान और सुन्नत के हिसाब से करना है, अपने नफ्स की पैरवी नहीं करना है, और दूसरा दुनिया वालों से डर कर फैसला नहीं करना है, अल्लाह से डर कर फैसला करना है, और तीसरा रिश्वत, पैसा, घूस व किसी तरह का चीजों को लेकर फैसला नहीं सुनाना है। इसके अंदर में ये वजाहत किया गया। तो ये कुरान और हदीस के रोशनी में हम लोगों ने ये उसूल देखा कि फैसला हमको किस तरह करना है। किसी भी मसले के अंदर में, किसी भी वक्त, किसी सिचुएशन में अगर किसी तरह का इख्तलाफ हो जाए तो उसको अल्लाह के तरफ और उसके रसूल के तरफ, यानी कुरान के तरफ और हदीस के तरफ रुजू करके ही फैसला को सुनाना है। इसके अलावा तीसरा सोर्स नहीं है। तो ये उसूल का मुख्तसर सा डिस्कशन रहा। अब हम लोग देखते हैं कुछ मिसाल कि सहाबा के दौर में अगर कोई चीजों में इख्तलाफ होता था तो वो लोग किस तरीका से फैसला करते थे, उनका तर्ज अमल क्या था। तो पहला मिसाल इसमें हम लोग लेते हैं, ये अबू दाऊद शरीफ का हदीस है 1840 नंबर कि अब्दुल्ला बिन हुनैन से मरवी है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मौरी बिन मुखरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मुकाम में थे कि उनमें से एक मसले में इख्तलाफ हो गया।
इब्न अब्बास ने कहा कि मुहर्रम अपना सर धो सकता है। मसवरा ने कहा कि मुहर्रम अपना सर नहीं धो सकता है। मुहर्रम जो हज के दौरान में जो हज करने जाते हैं उसको मुहर्रम बोलते हैं, जब नियत कर लेते हैं, ihram बांधते हैं, तो उनके सर के धोने के मसले में इख्तलाफ हो गया। इब्न अब्बास ने कहा कि वो सर धो सकता है और मसवरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि वो सर नहीं धो सकता है, मसला इख्तलाफ हो गया। चुनांचा इब्न अब्बास ने उसको अब्दुल्लाह बिन हुनैन को हजरत अबू अयूब अंसारी के यहाँ भेज दिया। तो उनको भेजा गया कहाँ? अबू अयूब अंसारी के पास। तो उसने उनको पाया कि वो कुएं के चरखी के 2 लकड़ियों के पास बैठे गुस्ल कर रहे थे और एक कपड़ा से पर्दा किए हुए थे। कहते हैं कि मैंने उनको सलाम किया तो उन्होंने पूछा कौन हो? तो मैंने कहा कि मैं अब्दुल्लाह बिन हुनैन हूं, मुझे अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने भेजा है कि आपसे दरियाफ्त करूं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत इहराम में अपना सर कैसे धोआ करते थे। तो उन्होंने अपना हाथ पर्दे वाले कपड़े पर रखकर उसे कुछ नीचे किया, हत्ता कि मुझे उनका सर नजर आने लगा। फिर उन्होंने एक शख्स से जो उन पर पानी डाल रहा था कहा पानी डालो। चुनांचा उसने उसके सर पर पानी डाला तो हजरत अयूब अंसारी ने अपने सर को दोनों हाथों से हरकत दी और अपने हाथों को आगे पीछे किया। फिर कहा कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था कि आप इसी तरह करते थे। तो इस मसले के अंदर में इख्तलाफ हुआ तो उन लोगों ने भेजा इनके पास कि जिनके पास इसके मुतालिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस मौजूद है, और वहां गए तो उन्होंने प्रैक्टिकल कर दिखाया भी और हदीस भी बयान किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरीका से करते थे। तो सहाबा लोग अपने मसले को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटाकर ही फैसला किया करते थे। दूसरा मिसाल देखिए, सुनन नसई का है, 3544 नंबर हदीस है। हजरत सुलेमान बिन यसार से मनकूल है कि हजरत इब्ने अब्बास और हजरत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इस औरत के बारे में इख्तलाफ हो गया जिसे अपने खामिंद के वफात से चंद दिन बाद बच्चा पैदा हो गया। कोई औरत है, उसका बच्चा पैदा हो गया चंद दिन बाद ही वफात के बाद, तो हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने फरमाया उसे दोनों में से बाद वाली इद्दत गुजारनी होगी। तो हजरत अबू सलमा ने फरमाया कि जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसकी इद्दत खत्म हो जाती है। इतने में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु आ गए। वो फरमाने लगे मैं अपने भतीजे अबू सलमान बिन अब्दुर्रहमान के तायीद करता हूँ। अब ये मसले में इख्तलाफ हो गया कि कोई औरत हामिला है और उसका शौहर मर गया तो उसको इद्दत कितना गुजारना पड़ेगा। तो इद्दत गुजारने का 2 तरीका है, एक अगर हमल है तो हमल वाजे हो जाए तो इद्दत खत्म हो जाता है, और एक आपका 4 महीना 10 दिन का जो इद्दत होता है उसको गुजारना है। इस उसूल में इख्तलाफ हुआ 2 सहाबी के अंदर में। तीसरा अबू हुरैरा भी आ गए तो उन्होंने अपने भतीजे का तायीद किया। अब इसका मसले का हल कैसे किया जाए, तो उन्होंने हजरत इब्ने अब्बास के मौला के करीब को हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास ये मसला पूछने के लिए भेजा गया। तो ये भेजा गया कि जाइए उनसे मसला पूछ के आइए जो इसका इल्म रखते हैं और जो इनकी हदीस रवायत करती हैं। उसने वापस आकर बतलाया कि उन्होंने फरमाया है कि सबिया ने अपने खामिद के वफात से चंद दिन बाद बच्चा जन्म दिया था और उसने ये बात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र की तो आपने फरमाया तेरी इद्दत खत्म हो गई। तो ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ रुजू करने से इस मसले का इख्तलाफ खत्म हो गया। इससे क्या पता चला कि सहाबा के दौर में किसी भी मसले में इख्तलाफ होता था तो वो लोग रसूल की तरफ रुजू करते थे, और जब दुनिया से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए तो उन लोगों के पास जाते थे जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में इल्म रखते थे, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो रवायत करते थे, उनसे पूछकर मसला का हल किया जाता था। एक और देखिए हदीस मुस्नद अहमद के अंदर में है 4588 के अंदर में एक मसला है। अरकमा कहते हैं कि सैयदना जैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु और सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का
ایک عورت کے بارے میں اختلاف ہو گیا جو طواف زیارت کے بعد حائجہ ہو جاتی ہے۔ سیدنا زید نے کہا کہ روانگی سے پہلے اس کا آخری کام بیت اللہ کا طواف ہی ہوگا، اور سیدنا عباس نے کہا کہ اگر اس نے نہر والے دن طواف کر لیا ہے تو جب چاہے روانہ ہو سکتی ہے۔ انصاریوں نے اس اختلاف کو دیکھ کر کہا کہ اے ابن عباس، ہم تیری پیروی نہیں کریں گے کیونکہ تم زید کے مخالف ہے۔ انہوں نے کہا تم لوگ اپنے خاندان کے خاتون سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھ لو۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے بھی نہر والے دن بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد حیض آیا تھا اور آپ نے مجھے طواف ودا کے بغیر روانہ ہونے کا حکم دیا تھا۔ اس طرح جب سیدنا صوفیہ رضی اللہ عنہ حائضہ ہو گئی تو سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ ان سے کہا خسارہ ہو تیرے، بے شک تم ہم کو روکنے والی ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی گئی تو آپ نے فرمایا اس کو حکم دو کہ وہ روانہ ہو جائے۔ تو اس میں بھی ایک مسئلے کا اختلاف ہوا کہ کوئی عورت اگر حائضہ ہو جائے تو اس کے لیے طواف ودا، مانے جب حج سے اپنے ملک لوٹنے کے وقت میں جو کیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں طواف ودا، وہ کرنا ضروری ہے کہ نہیں۔ تو اگر کوئی عورت پہلے سے طواف اضافہ اگر کر چکی ہے تو اس کو رکنے کا ضرورت نہیں ہے۔ اسی مسئلے میں اختلاف ہوا تو پھر رسول کی طرف رجوع کر کے اس مسئلے کا حل کیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور ہے، یہ اثر ہے، یہ حدیث ایک ہے بخاری شریف کا 4454، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت یہ اختلاف ہوا تھا صحابہ کے اندر میں، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے کچھ کہہ رہے تھے۔ ابو بکر نے کہا عمر بیٹھ جاؤ، لیکن عمر نے بیٹھنے سے انکار کیا۔ اتنے میں لوگ عمر کو چھوڑ کر ابو بکر کے پاس آ گئے اور آپ نے خطبہ مسنونہ کے بعد فرمایا اما بعد، تم میں جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو کیا تم اسلام سے اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اگر جو کوئی اپنے ایڑیوں کے بل پھر جائے تو اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، اور اللہ کا شکر ادا کرنے والوں کی اچھی جزا دے گا۔ سورہ عمران کا آیت نمبر 144 یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھا۔ ابن عباس نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم ایسا محسوس ہوا کہ جیسے پہلے سے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے، اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی تلاوت کی تو سب نے ان سے یہ آیت سیکھی۔ اب یہ حال تھا کہ جو بھی سنتا وہی اس کے تلاوت کرنے لگ جاتا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم مجھے اس وقت ہوش آیا جب میں نے ابو بکر کو اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ جس وقت میں نے انہیں تلاوت کرتے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں سکتے میں آ گیا اور ایسا محسوس ہوا کہ میرا پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا اور زمین پر گر پڑوں گا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد لوگوں صحابہ کے اندر میں اختلاف پیدا ہوا۔ عمر رضی اللہ عنہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے نہیں گئے ہیں، ان کا یہ تھا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آیا اور قرآن کے حوالے پیش کر کے خطبہ دیا اور اس میں وضاحت کیا، تو سب لوگ صحابہ اس آیت کو پڑھنے لگے اور اختلاف اسی وقت وہ ختم ہو گیا۔ مگر امت میں یہ اختلاف آج بھی باقی ہے۔ امت کا ایک گروہ ہے جو اس بات کو کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پائے ہیں، وہ بھی ابھی بھی زندہ ہے، اور اس پر ابھی بھی اختلاف ہے۔ موت کا ورڈ کہنے کے لیے بھی اختلاف لوگ کرتا ہے۔ تو یہ اس دور کے اندر میں صحابہ لوگ قرآن اور حدیث کے طرف رجوع کر کے فیصلہ کیا کرتے تھے۔ ایک اور مسئلہ ہے، حضرت کعب بن عمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مسجد میں آئے تو دیکھے کہ عبد الرحمن بن ام حکم بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں۔ جمعہ کے دن یہ بندہ
बैठ कर खुतबा दे रहे हैं, तो उन्होंने फरमाया इस खबीस को देखो बैठ कर खुतबा दे रहा है, जबकि अल्लाह ताला का फरमान है जब वो तिजारत या कोई मसगला देखते हैं तो उधर दौड़ पड़ते हैं और आपको खड़ा छोड़ जाते हैं। तो ये कुरान के अंदर में आयत है, उसको हवाला देते हुए इस सहाबी रसूल ने उस वक्त के हाकिम को जो बैठ कर खुतबा देता हुआ उसको गलत बड़ा बुरा बोले और वजाहत किए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बैठ कर खुतबा नहीं देते थे, खड़ा होकर खुतबा देते थे, जुम्मा का खुतबा जो होता है। तो कुरान और सुन्नत के रोशनी में जब हम गौर करेंगे तो हमको पता चलेगा कि फैसला किस तरीका से करना है। इसके बाद हम लोग एक और उसूल पर आते हैं कि सिराते मुस्तकीम कितना है। सिराते मुस्तकीम एक है कि एक से ज्यादा है। इस मसले पर हम लोग इस उसूल पर गुफ्तगू करेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में, इसलिए कि आज लोग कहते हैं कि 4 फिका है और चारों में से किसी एक की पैरवी करेंगे तो आप कामयाब हैं, यानी 4 सिराते मुस्तकीम को बयान किया जा रहा है और शिया को मिला लेंगे तो 5 सिराते मुस्तकीम, 5 सिराते मुस्तकीम का दावा है, ठीक है ना। तो कुरान और सुन्नत के अंदर में हम लोग देखेंगे कि सिराते मुस्तकीम कितना है और उसका वजाहत क्या है। तो सबसे पहला आयत है ज़ुखरुफ का कि भला सुबह अल्लाह ही मेरा और तुम्हारा रब है, लिहाजा तुम इसी की इबादत करो, यही सिराते मुस्तकीम है। तो पहला नंबर सिराते मुस्तकीम का वजाहत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया कि मेरा और तुम्हारा सबका रब अल्लाह है और अल्लाह ही का इबादत करना यही सिराते मुस्तकीम, यानी अल्लाह की इबादत को छोड़कर अगर कोई दूसरे की इबादत का जिक्र करे तो वो सिराते मुस्तकीम नहीं हो सकता है। दूसरी आयत है और बेशक वो ईसा क़यामत की एक निशानी है, लिहाजा तुम उसमें शक न करो, वो तुम मेरी पैरवी करो, यही सिराते मुस्तकीम है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैरवी करने को कहा जा रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की एक निशानी है, यानी क़यामत के करीब ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल होने वाला है, ठीक है ना। इसमें इख्तलाफ करने की गुंजाइश नहीं है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी किया जाए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुतालिक वजाहत के साथ हदीसों के अंदर में बयान फरमाया है। तो अगर इस मसले में भी कोई इख्तलाफ करता है तो वो भी सिराते मुस्तकीम से हटा हुआ है, इसलिए कि इस पर भी सिराते मुस्तकीम का वजाहत किया गया है। सूरह मोमिनून के अंदर में आयत नंबर 73 में अल्लाह ताला बयान फरमाता है और भला सुबह आप उन्हें सिराते मुस्तकीम की तरफ बुलाते हैं, यानी सिराते मुस्तकीम की तरफ कौन बुलाता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके तरफ लोगों को बुलाते थे? तो वही की तरफ बुलाते थे। वही कहां पर मौजूद है? तो कुरान और सुन्नत की तरफ मौजूद है, यानी कोई लोग जब कुरान और सुन्नत की तरफ लोगों को तरफ बुलाएगा वही सिराते मुस्तकीम है। अगर कुरान और सुन्नत की तरफ कोई नहीं बुला रहा है, किसी ग्रोह की तरफ, कोई फिरके की तरफ, कोई स्कॉलर की तरफ अगर कोई इंसान बुला रहा है तो वो सिराते मुस्तकीम का रास्ता नहीं हो सकता। सूरह शुअरा के अंदर में आयत नंबर 52 में अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि इसी तरह हमने आपके तरफ अपने हुक्म से एक रूह की वही की और आप नहीं जानते थे कि किताब क्या चीज है और ईमान क्या है, लेकिन हमने उसे नूर बनाया और हमने अपने बंदों में से जिसे चाहे उसके जरिए से हिदायत देते हैं। भला सुबह आपसे सिराते मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर फिर वजाहत किया जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सिराते मुस्तकीम पर हैं और सिराते मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई करने वाले हैं। तो जो लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के तरफ रहनुमाई करने का बात करेगा वही सिराते मुस्तकीम है। अगर रसूल को छोड़कर
किसी और की तरफ रहनुमाई का और चलने का रास्ता बताएगा तो सिरात मुस्तकीम पर नहीं हो सकता है। सूरह इमरान के अंदर में आयत नंबर 101 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, और जो शख्स अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ ले तो उसे सिरात मुस्तकीम की तरह हिदायत मिल जाएगी। तो इसमें हिदायत मिलने का एक उसूल भी बयान किया जा रहा है कि जो लोग अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़े। और पिछले दर्स में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दीन किन चीजों को कहा जाता है और दीन जो है वह हिफाजत कहाँ है। तो दीन कुरान और सुन्नत के अंदर में हिफाजत है। तो जो लोग कुरान और सुन्नत के मजबूती से पकड़ेगा वही सिरात मुस्तकीम पर है और वही हिदायत पर है। तो ये वजाहत है कि भाई सिरात मुस्तकीम क्या है और सिरात मुस्तकीम पर चलने वाले कौन लोग हैं। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट दर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिरात मुस्तकीम एक है कि एक से ज्यादा है कुरान और हदीस की रोशनी में, ठीक है ना। इसी पर हम लोग अपने आज दर्स को खत्म करते हैं। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।